ऐसा ब्रॉडकास्ट कर दो साथ बोल तो दिया था मैंने कर दो फिर कॉल 96 बॉम्ब है यार एक 55 पे कर लेंगे ना ब्रॉडकास्ट जंग लग गया कैसे हम्म
A very good afternoon to all the participants and welcome to the national and international webinar series hashtag Mountain Talk. Today we will have with us Mr. Madhusudan Patidar, who is a mountaineer and who has achieved Mount Everest in 22 hours. He will be joining soon. Please stay tuned to hashtag Modern Talk. Thank you, Samiksha Jain, for correcting. He is the young Indian boy who climbed Mount Everest from North region, China, the first person in the world to climb the Mount Everest, Mount of Kilimanjaro, Africa's highest mountain, for 22 hours.
A very good afternoon to all the participants. Mr. Madhusudan is joining in a while. Please stay tuned to hashtag Modern Talk. A very good afternoon to one and all, and welcome to the National International Webinar Series, hashtag Modern Talk. Sorry, we are delayed by 8 minutes, but sir will be joining in a while.
So please stay tuned to hashtag Modern Talk. हेलो मधुसूदन जी, कैसे हैं हेलो आप? मैम, हाउ आर यू? आई एम गुड सर, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? सॉरी थोड़ा लेट हो गया। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। ठीक हूँ, मैं भी ठीक हूँ। जी जी। तो कोई डिले नहीं मैं करेंगे आप? भोपाल आया था तो थोड़ा इश्यू हो रहा था। अच्छा, नेटवर्क इशू है शायद। हम्म, हमारे साथ हमारे ग्रुप डायरेक्टर हैं डॉक्टर पुनीत कुमार द्विवेदी जी। अ, हम्म, और हमारे साथ अभी तक 113 पार्टिसिपेंट हुए हैं और ये बढ़ रहे हैं। पुनीत सर, पुनीत सर, आप आपका माइक। तो तो नमस्ते सर, नमस्ते। डील है। आई वुड चेयर मिलेगी क्या बैठने के लिए? चेयर चेयर। हम्म, मेरा क्या सेशन है, कुछ मतलब जगह मिल जाएगी थोड़ी बैठने के लिए? हेलो। यस सर। यस मैम, करिए स्टार्ट। या श्री गणेश करिए। सॉरी, आपको बहुत परेशानी हो रही है। I will take a while. I am just doing live for the Facebook also. ओके। So, fine. It is also live on the Facebook too. Right now we have 118 participants with us,
and those who are listening to you, and those who came to listen to you, your journey, your life, your motivation behind the mountaineering, and everything motivates you. So before going further, I would like to give a brief introduction about our organization, and for that I need to share my screen. I hope my screen is visible now. Yes, ma'am. Yes. Group of Institution is a leading group of premier institute affiliated to RGPV Bhopal, DVV Indore, and CBSE New Delhi. It is approved by AICTE New Delhi, NCT, and PCI New Delhi. Modern Group is imparting quality education in the field of pharmacy, management, commerce, and education. We offer more than 8 courses in this field, which includes B Pharma, M Pharma, G Pharma, BBA, BCom, and B.Ed. Modern Group encompasses two leading pharmaceutical industries, two Modern Lab and Nandini Medical Laboratories Private Limited. Modern Laboratories was established in 1979 by late Shri P.C. Khariaji, and Nandini Medical Laboratories was established in 1998. Both gained prestigious examination in All India rating of pharma industries. We also have a Modern International School established in 2013. We live in innovation and entrepreneurship, and hence we have introduced MP's Post Pharma Incubation Center Modern Incubator in the year 2019, sponsored by MSA Government of India. Recently, we have received World Book of Record UK and World Record Academy USA for making largest human image of medication capsule. Also, we are recognizing participation in schedule of Uttar Bharat Abhiyan by MHRD association by IIT Delhi and MHRD Government of India. The institute also have Modern Innovation Council, which is an institution innovation cell by MHRD Innovation Cell. Recently, we have started this webinar series hashtag Modern Talk in the month of June, and we have almost completed 41 webinars in this series in hashtag Modern Talk, in which 8 were international webinars. So this was a brief journey about our organization, and now I would request our group director, Dr. Puneet Kumar Dwivedi, to welcome our guest. Thank you, Madhusudan ji, for accepting our invitation. Thank you, sir. Thank you for inviting me. It is proud moment to have you here in this modern talk. और आज हम एक एवरेस्ट विजेता से मुखातिब होंगे, उनकी जो जर्नी है वो सुनेंगे और किस प्रकार उन्होंने देश प्रदेश और अपने राहु क्षेत्र का नाम रोशन किया है विश्व के मानचित्र पर। इसके बारे में हम उनकी जीवन गाथा सुनेंगे और युवाओं को इससे प्रेरित करेंगे। मुझे कविता की कुछ पंक्तियां याद आती हैं। देख कर बाधा विविध बहुविघ्न घबराते नहीं, रह भरोसे भाग्य के दुख भोग पछताते नहीं, काम कितना भी कठिन हो किंतु उकताते नहीं, भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं, हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले, सब जगह सब काल में वे ही मिले फूले फले, पर्वतों को काट कर सड़कें बना देते हैं जो, सैकड़ों मरुभूमि में नदियां बहा देते हैं जो। तो ऐसे ही आज हमारे आज के स्पीकर श्री मधुसूदन पाटीदार जी, जो इंटरनेशनल माउंटेनियर हैं और एवरेस्ट विजेता हैं, उनको आज हम सुनेंगे। यह मॉडर्न ग्रुप ऑपरेशन का सौभाग्य है कि हमें आज ऐसे व्यक्तित्व को सुनने का अवसर मिल रहा है। On behalf of Modern Group of Institutions, on behalf of our Chairman Shri Anil Kharia, Vice Chairman Shri Shantanu Kharia, I Dr. Puneet Dwivedi welcome you, sir, in this Modern Talk, a national webinar series. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Before moving further, I would like to give a brief introduction about our today's guest, and for that I need to share the screen. I hope my screen is visible now. Mr. Madhusudan, born on 16 July 1996. Madhusudan is an international mountaineer, adventurer, and explorer from the Rao region of Indore. Madhusudan belongs to a middle-class family and is a fire technology engineering and a mountaineer by profession. On 21st May 2007, he successfully climbed Mount Everest and became the youngest person from Madhya Pradesh to reach the top via the North Ridge. He holds the world record for spending 22 hours of Mount Kilimanjaro, the highest mountain of Africa. He has many achievements in mountaineering and traveling.
He is the youngest Indian boy who climbed Mount Everest from North China, the first person in the world to climb the Mount of Kilimanjaro, Africa's highest mountain, for 22 hours. He is the youngest person who climbed Mount Everest from Madhya Pradesh. Mr. Madhusudan is also a brand ambassador of World Advantage Society Brazil. He has done Bangalore to Goa cycling expedition, registered the Limca Book of Record, registered in 550 kilometer, 42 cycles hour. So, on behalf of the entire modern family, I feel acknowledged and enlightened, and I extend my heartfelt welcome to Mr. Madhusudan. Uh, Now, before going going late, or we have already late by 10-15 minutes. So, without wasting time, we will start the introductory talk, and we will listen to Madhusudanji more and more. So I will just hand over to you, Madhusudanji, and you can start your introductory talk. Thank you so much, ma'am, for inviting me, and sorry for the delay. So actually, ma'am, my story was start from when I was 13. आवाज आ रही है ना? आपकी आवाज एकदम साफ आ रही है सर. हाँ, आप बोल सकते हैं. हाँ जी. तो मैं जब छोटा था, 13 साल का था, जब से मैंने क्लाइंबिंग स्टार्ट की है. तो जैसे कि आपको पता है, मैं राऊ से हूँ, इंदौर से हूँ. तो इंदौर में ज्यादा माउंटेन्स नहीं है. मतलब इंदौर का हाईएस्ट राला मंडल मालवा हो का गया. रीजन है सर, तो माउंटेन्स नहीं है वहाँ पे. मतलब इंदौर के लिए राला मंडल माउंट एवरेस्ट माउंटेन है. वेरी ट्रू. तो मैंने वहां से स्टार्ट करी मेरी जर्नी. तो मैं पहले बचपन में रॉक क्लाइंबिंग करता था, फिर मैंने स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग में थोड़ा हाथ करा, फिर धीरे धीरे मैं माउंटेनियरिंग में आया. तो मैंने मतलब जब मैं छोटे छोटे माउंटेन क्लाइंब करने गया, फिर मैंने इंडियन आर्मी से कोर्स किया था, बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स, जो कि कश्मीर से किया था मैंने. वहाँ पे स्कूल है, हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल, जो सियाचिन बॉर्डर या फिर जो लद्दाख की बॉर्डर है, या फिर सारी जो हाई एल्टीट्यूड बॉर्डर है, उनके लिए ट्रेनिंग दी जाती है इंडियन आर्मी के द्वारा. तो वो कुछ 15 सिविलियंस को हर साल डिसाइड करते हैं, मतलब चूज करते हैं पूरे इंडिया से. अच्छा. तो उनमें से मैं एक था, मध्य प्रदेश से. तो मैंने उनसे ट्रेनिंग ली, बेसिक माउंटेनिंग कोर्स की. फिर मैंने एडवांस कोर्स किया दार्जिलिंग से. वहाँ पे हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग है, जो कि तेंजिंग नोर्गे ने खोला था 1953 में, जो कि फर्स्ट पर्सन है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट क्लाइंब किया है. तो वहां से फिर मैंने एडवांस कोर्स किया. फिर मेरी जर्नी और आगे गई. फिर मुझे जाके पता चला, मतलब हर माउंटेनियर का एक ड्रीम होता है कि माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करना है, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट है अर्थ का. तो फिर मुझे पता चला कि एवरेस्ट क्लाइंब करने के लिए अराउंड 40 लाख रुपए लगते हैं. तो मुझे पता नहीं था कि इतना खर्चा लगता है. फिर सपने के लिए कुछ, मतलब मैं कॉलेज में पढ़ता था, फर्स्ट ईयर में था जब मैंने देखा ये, मतलब 16-17 साल का था. फिर पता चला कि स्पॉन्सरशिप वगैरह मिलती है एवरेस्ट के लिए. तो नॉर्मली मुझे नहीं मिली थी. मतलब मैं बैग में 4-5 फाइल्स लेके घूमता था. अगर कोई अच्छा पॉलिटिशियन मिल गया तो उसको दे दी, या कोई बिल्डर मिल गया तो उसको दे दी, मतलब जो भी अमीर आदमी मिल जाए जो मुझे स्पॉन्सर करे. बट लास्ट मुझे कुछ स्पॉन्सरशिप वगैरह मिले नहीं. तो फिर फाइनली मेरी फैमिली भी मतलब परेशान हो गई थी कि भटकते रहता है. मतलब एक टाइम तो मेरा इंजीनियरिंग का पेपर था, और मुझे रात को कॉल आया था, सुबह मेरा पेपर था, कि जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे अपने सिंधिया में, बोलो उनसे आपकी मीटिंग है. तो मैंने एग्जाम नहीं दी थी, तो मैं भोपाल चले गया था रात को. अच्छा. फिर सुबह वो मुझसे मिल नहीं पाए. तो सुबह वो मुझसे मिल भी नहीं पाए, और फिर मैंने सोचा चलो ठीक है. फिर वहां से मैं आया. फिर मेरी फैमिली ने मतलब हमारा घर मॉर्गेज वगैरह किया था. फिर मैं एवरेस्ट पे गया. तो 7 अप्रैल 2017 को मैं इंदौर से निकला था 1000 रुपए लेके माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करने. तो मतलब नेपाल जाने तक भी मुझे पता नहीं था कि कुछ अरेंजमेंट होंगे या नहीं होंगे. फिर जो एजेंसी थी नेपाल की, क्योंकि जो मैंने चाइना की साइड से क्लाइंब किया है, तो इंडियंस को चाइना में वीजा ले पाना थोड़ा मुश्किल काम होता है. मतलब चाइनीज इतनी आसानी से इंडियंस को वीजा नहीं देते. तो उसमें थोड़ा इश्यू आया. तो जो मतलब उनके कुछ लिमिटेड वीजा होते हैं जो इंडियंस को मिलते हैं. तो जो लास्ट वीजा था 2017 का, वो मुझे मिला था क्लाइंब करने के. हाँ. तो मैं 13 अप्रैल को
एवरेस्ट के बेस कैंप पे पहुंचा था चाइना साइड में। तो मेरी टीम में टोटल हम 7 लोग थे, मैं अकेला इंडियन था, एक ऑस्ट्रेलिया से था, फिर 2 इंग्लैंड से थे, 2 स्वीडन से थे, एक अर्जेंटीना का था। तो हमारी जर्नी स्टार्ट हुई, फिर बेस कैंप से एडवांस बेस कैंप गए, कैंप 1 गए, फिर एवरेस्ट क्लाइंब करने में टोटल 2 महीने लगते हैं, मतलब उतना उसका हाइट है। और उसके लिए एक एक्लिमेटाइजेशन की एक प्रक्रिया होती है, तो उसमें आपको बकायदा मतलब हर मतलब 5,000 मीटर से आप 6,000 मीटर गए, फिर वहाँ पे आपको स्टे करना पड़ता था कि आप उस वातावरण में आप ढल जाएं। जी। उसको हम रोटेशन बोलते हैं कि बेस कैंप से कैंप 1, फिर बेस कैंप आते हैं, फिर बेस कैंप से हम कैंप 2 जाते हैं, फिर हम नीचे आते हैं बेस कैंप, वहाँ पे कुछ दिन स्टे करते हैं, फिर बेस कैंप से कैंप 3 जाते हैं, फिर वहाँ पे थोड़ा स्टे करते हैं। वो पूरी प्रक्रिया को एक्लिमेटाइजेशन बोलते हैं। तो फाइनली जब हमारी पूरी टीम रेडी हो गई थी, तो हमने अराउंड 5-6 कंट्रीज से हमने वेदर रिपोर्ट्स मंगाई थी। तो मतलब वहाँ पे नॉर्मली ये होता है कि हम सारा जो वेदर का कितना बर्फ गिरेगा आज, या फिर कितना विंड स्पीड होगी, या फिर कितनी मतलब टेम्परेचर क्या होगा, मतलब आज -40 है, कल -50 होगा, -30 होगा। तो हम एक पूरा रिसर्च करके हम ऐसा करते हैं कि 3 दिन टेम्परेचर खराब होना चाहिए। जो फाइनल डे समिट पुश होता है, जो उस दिन टेम्परेचर अच्छा होना चाहिए। तो हमने 16 मई का फाइनल करके हम निकले थे। तो हम 11 तारीख को बेस कैंप से निकले थे और 15 तारीख को समिट कैंप पे पहुंचे, और पूरा वो मतलब वाइट आउट हो गया, तो हमारा क्लाइम नहीं हो पाया उस दिन। हम फिर वापस नीचे आए तो मतलब सारे एग्जॉस्ट हो गए थे, और मतलब वेदर रिपोर्ट के अराउंड 600-650 डॉलर लगते हैं। स्विट्जरलैंड में एक वेदर फोरकास्टर है माइकल फेगन, उससे हमने वेदर रिपोर्ट ली थी। तो हम वापस बेस कैंप में आए, थके बैठे थे, और किसी के पास पैसे भी नहीं थे कि डबल से वेदर रिपोर्ट मंगाए। तो ऐसे ही बैठा था, तो जो वॉकी टॉकी होता है, तो इससे हम मैसेज करते हैं जी। तो उसको हमने एडजस्ट किया। तो एवरेस्ट के उस पार नेपाल है, इस साइड चाइना है। तो हमने एक फ्रीक्वेंसी पे ऐड किया, तो एक कंपनी है कैरी कॉबलर, वो एवरेस्ट क्लाइम करने के अराउंड 3 करोड़ रुपए लेती है। ओहो। वो वर्ल्ड की बेस्ट कंपनी है। तो हमने सुना कि वो 21 मई को क्लाइम कर रहे हैं। तो मैंने मेरी टीम को बोला कि यार ये 3 करोड़ रुपए लेती है, तो इसकी वेदर रिपोर्ट अच्छी ही होगी, तो हम भी 21 को जाते हैं। तो हमने वो जुगाड़ लगाया। तो मैंने बोला कि पर दिक्कत ये थी कि हम 16 तारीख को तो नीचे उतरे ही थे चढ़ के, मतलब 8,300 फिर मीटर अगेन गए, यू हैव फिर टू क्लाइम। 16, हाँ ऑलरेडी एग्जॉस्ट 3 तो खत्म हो गए थे, ऑक्सीजन तो 3 ही बचे थे। तो एवरेस्ट का ऑक्सीजन बहुत महंगी है, मतलब 40,000 रुपए का एक सिलेंडर आता है, तो बहुत ज्यादा महंगी है, वो भी 4 किलो का। तो फिर हम वापस वहाँ से स्टार्ट किया हमने जर्नी। तो मतलब कैंप 1, कैंप 2, कैंप 3 के बाद 20 मई को हम समिट कैंप पे पहुंच गए थे, जो कि 8,300 मीटर पे। तो उसके बाद क्या हुआ, हम दिन में पहुंचे थे अराउंड 3 बजे के आसपास। तो पूरी टीम ने डिसाइड किया कि 2-3 घंटे रेस्ट करके 6-6:30 बजे रात में निकलेंगे समिट के लिए। तो हमने सबने प्लान किया, सबने पानी वानी भर लिया गर्म करके, कुछ स्नीकर्स खा ली, ऑक्सीजन रेगुलेटर सेट कर दिया, नया ऑक्सीजन सिलेंडर चेंज कर लिया। तो जब हम निकले थे, तो हमारा एक मतलब जो हमारी टीम में एक कैंडिडेट था जो कि ऑस्ट्रेलिया से था, उसका नाम फ्रैंक था। तो वहाँ पे एक चाइनीज लेडर है 8,450 के आसपास, तो वो वहां से गिर गया। तो मतलब उस समय में 20 साल का था। तो पता उसमें था, मेरे नीचे जॉन था, जॉन के नीचे मॉली थी। तो वो जैसे ही गिरा, तो उसकी फॉल मुझे अरेस्ट करनी थी, तो वो लेडर पे मैं अरेस्ट नहीं कर पाया, तो वो नीचे गिरा। फिर मैं नीचे उतरा, हम सब नीचे, तो मैं सबसे लास्ट में नीचे उतरा था जब तक वो मर चुका था। तो हम मतलब सब उसको सीपीआर वगैरह दिया, ये वो, हम उसको बचा नहीं पाए। और मैं सबसे छोटा था, मतलब पूरे बेस कैंप में सबसे छोटा था मैं, बाकी सब मुझसे बड़े थे। मतलब मैं यंगेस्ट इंडियन था जिसने चाइना से क्लाइम किया पूरे बेस कैंप पे भी सबसे। तो मैं तो एकदम समझ में नहीं आया मुझे, मैं करूँ क्या। तो मैं एक पत्थर पे बैठा, मैंने एक घुट पानी पिया, और मैं नॉर्मली जगजीत सिंह की गजलें सुन के चढ़ता हूँ, क्लाइम करता हूँ।
तो मैंने थोड़ी और वॉल्यूम बढ़ाई और मैंने ये मेरे शेरपा को ये बोला बहुत ही अजीब है, पर गजलें सुनकर क्लाइंब करना, मतलब लोग मोटिवेशनल गाने सुनते हैं, आप गजलें सुनकर क्लाइंब करते हैं। नहीं, मतलब नॉर्मली ये होता है कि आप जब 8000 मीटर के ऊपर जाते हैं सी लेवल के ऊपर, मतलब मैं आपको एक वाक्य बताऊंगा कि हम कैंप 3 पे बैठे थे, तो धूप निकली थी, तो मैं और मौली हम दोनों फोन चार्ज करने के लिए सोलर पैनल लगा रहे थे। तो मौली ने मुझे बोला था कि मोगली, सी देयर इज एरोप्लेन, मतलब एक प्लेन हमारे नीचे से उड़ के जा रहा था। तो मैंने सोचा, मैंने कहा सही में बहुत ऊपर आ गए। दैट इज अमेजिंग मीन्स। मतलब एवरेस्ट की हाइट 29,000 फीट है, 29,000 29 फीट। अभी भी जैसे नॉर्मली दिल्ली वगैरह जाते हैं तो वो पायलट बोलता है ना, कैप्टन बोलता है कि यू आर फ्लाइंग एट 14,000 फीट और 15,000 फीट, तो मैं जो बाजू में बैठता हूँ उसको बोलता हूँ कि भाई 29,000 पे तो मैं पैदल चल के गया था, अभी तुम 15,000 पे उड़ रहे हो। तो तो वहां से जो पूरा मतलब, फिर मैंने मतलब खुद को, क्यों होता ही है कि 8000 मीटर पे आपके माइंड में ऑक्सीजन नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे जीरो ऑक्सीजन लेवल होता है, मतलब आप सिलेंडर पे जी रहे हैं, अगर सिलेंडर खत्म तो आप मर जाएंगे। तो आप सोच नहीं सकते। नॉर्मल हम जैसे यहाँ पे सोच के बात कर सकते हैं, थॉट्स बना सकते हैं, वहाँ पे दिमाग काम नहीं करता, सोच नहीं सकते। तो हम लोग लिख के ले जाते हैं कि करना क्या है। जैसे कि अच्छा। मैं कागज पे लिख के ले गया था कि मेरे ये वाले जिप में इंडियन फ्लैग है, ये वाले जिप में कैमरे का लेंस है, उसमें मशीन है, उसमें स्पॉन्सर के फ्लैग है या फिर प्रेस फ्लैग है, मतलब हर चीजें याद याद नहीं रहती। याद नहीं रहता है तो मतलब। मैंने फिर, हाँ, तो फिर मैंने उसको थोड़ा मोटिवेट करा। मैंने बोला कि भाई 30 लाख रुपए का लोन लिया है, नहीं चढ़ेंगे तो कहाँ से देंगे। तो फिर मैं मतलब वो रात भी काफी खूबसूरत थी, मतलब आप एवरेस्ट से चांद देखोगे तो बहुत बड़ा दिखा है, मतलब जो आप मिल्की वे गैलेक्सी होती है नॉर्मल यहाँ देख नहीं सकते, पॉल्यूशन काफी, बाकी इतनी हाइट से आप क्लियरली देख सकते हैं कि गैलेक्सी क्या होता है। तो 6:30 बजे के आसपास हम एवरेस्ट के टॉप पे पहुंच गए थे। तो वहाँ का नज़ारा भी बहुत खूबसूरत था, मतलब इधर नेपाल था, उधर चाइना था, उधर इंडिया था, और आप दुनिया के शिखर पे बैठे हो और प्राउडली कह सकते हैं कि हाँ आज मैं सबसे ऊपर हूँ, आसमान मेरे नीचे, दुनिया नीचे। तो मैं अराउंड 40 मिनट वहाँ रुका था। फिर फोटोज वगैरह लिए, सब कुछ हुआ। एक स्टोन भी मैं लाया था एवरेस्ट के टॉप से। फिर हम नीचे आते वक्त, हमारे 2 टीममेट और थे जो कि मिसिंग थे। वो एक टीममेट थी मौली, जो कि उतरते वक्त उसी लेडर पे से गिरी थी। तो उसको हमने रेस्क्यू करने के लिए कैंप 3 जो हमने लगाया था, नॉर्मली जैसे 6 सिलेंडर होते हैं, 3 हमारे फर्स्ट ऑपरेशन में खत्म हो गए थे, 3 में मुझे क्लाइंब भी करना था और डिसेंड भी करना था। तो एक सिलेंडर में मैंने क्लाइंब करा, एक रास्ते में छुपाया था, और एक से जो मैं डिसेंड कर रहा था, तो हमने उस लड़की के रेस्क्यू के लिए जो मेरा सिलेंडर मैंने उसको दिया, फिर मेरे शेरपा ने उसको दिया। तो अराउंड हमने 8300 मीटर पे विदाउट ऑक्सीजन पूरी रात सर्वाइव किया। तो रात को लगभग 3-4 बजे मुझे ऐसा लग रहा था कि मौली बच जाएगी और मैं मर जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास ऑक्सीजन जी। तो फिर मैंने मेरे शेरपा को बोला कि दाई मैं जा रहा हूँ, आप इसको लेके आना। तो मैं रात को निकला और मेरा एक स्पेयर सिलेंडर था, मतलब उसमें कुछ आधा किलो के आसपास ऑक्सीजन बची थी। तो वो मैंने छुपा के रखा था कैंप 2 में। कैंप 2 8000 मीटर के नीचे है। तो फिर मैं नीचे गया और मैं 7-8 बजे वहां पहुंच गया था कैंप 2 पे। फिर मैंने वो आधे घंटे तो मैंने सिर्फ ऑक्सीजन ही खाई कि ऑक्सीजन होती कैसी है, मतलब रात से ओ देखी माय नहीं थी, गॉड। क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन थी नहीं। तो फिर उसी रात में मैं एडवांस बेस कैंप पहुंचा था। तो जो हमारा कुक था, तो कुक का जो असिस्टेंट था, डोरजी नाम था उसको, तिब्बतियन था वो। मैंने उसको प्रोव किया था कि अगर मेरा समिट हो जाएगा, मैं क्लाइंब करके आ जाऊंगा, तो मेरा जो फेदर जैकेट है वो मैं तुझे गिफ्ट करूंगा। तो मैंने वॉकी पे मैसेज डाला, तो हेड टॉर्च चालू करके धीरे धीरे आ रहा था, तो वो भी उधर से आ रहा था कि उसको मैसेज मिला था कि मोगली दाई आ रहे हैं, तो मोगली दाई चिल्लाते हुए आ रहा था। मैंने उसको हाथ दिया और लेके गया। तो मैं सीधा डाइनिंग हॉल में गया। फिर मेरा कुक बोलता है मुझसे कि मोगली आज क्या खाओगे। तो मैंने बोला कुछ मीठा खिलाओ। बोले कुछ ज्यादा राशन बचा नहीं है। तो मैंने बोला चाइना में थे तो वहाँ नूडल्स मिलते, वाई वाई बोलते चाइनीज लोग,
तो मैंने बोला नूडल्स में आप दूध पाउडर डालिए, शक्कर डालिए और नूडल्स की सेवइयां बनाइए, हम मीठा खाएंगे। तो मतलब उन्होंने कभी खाई नहीं थी उन लोगों ने, चाइनीज लोगों ने, तो आपने सेवइयां खिला दी उनको। तो मैंने उनको नूडल्स खिला। फिर मैंने ग्लव्स निकाला तो मुझे पता चला मेरी एक उंगली कट गई है, मतलब वो जम गई है। फिर वो मतलब खुशी थी तो मैंने बोला चलो एक छोटा सा गिफ्ट है एवरेस्ट के लिए। मतलब वो गल गई फिर उंगली मतलब आपकी? एडवांस, हाँ वो जम गई थी, मतलब वो अराउंड -40 डिग्री में अच्छा। फ्रीज हो गई थी, मतलब क्योंकि मेरे बॉडी में ऑक्सीजन नहीं था ना, मैं विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइव कर रहा था। तो उसका बहुत कम यूज आता था, नॉर्मली हमको हर 5-10 सेकेंड में मूव हाथ करना को पड़ता है। मूव करना तो रहता है। वो लेडर पे लटक, हाँ, ताकि वो ब्लड सर्कुलेशन चलता रहे हम्म, फेस में। हम्म। तो वो पूरा करा और फिर मतलब बेस कैम्प हम पहुंचे। तो बेस कैम्प हम शाम को 7 बजे पहुंचे। फिर हमारी एजेंट आई, वो बोलती कि कल आपका वीजा एक्सपायर हो रहा है। मैंने बोला कुछ तो इंतजार, कुछ तो रेस्ट करने दो। फिर रात को ही कार आई और मुझे लासा ले गए, लासा से भी मैं नेपाल आया। फिर कुछ 3-4 महीने तक लाइफ बड़ी अच्छी चली, सेलिब्रिटी वाली, मीडिया से फोन आ रहे, ये आ रहे, वो आ रहे। गवर्नमेंट ने काफी प्रॉमिस किए थे, सब फेक प्रॉमिस थे, कुछ ज्यादा हुआ नहीं। मतलब स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे या चीफ मिनिस्टर थे, काफी फाइट करी लाइफ से, गवर्नमेंट के खिलाफ केस किया, फिर भी कुछ हुआ नहीं। फिर मैंने सोचा कि कुछ और एक्सट्रीम करता हूँ, तो मैं फिर अफ्रीका गया, जो माउंट किलिमंजारो पे। जी जी। किलिमंजारो पे अराउंड 5-6 रास्ते हैं उसको क्लाइम करने के। मैंने जो सबसे टफ रास्ता था वेस्टर्न ब्रिज, जो कि पिछले 12 साल से बंद था। हम्म। तो वहाँ एक टीम गई थी, अमेरिकन टीम, तो वो सारे लोग मर गए थे। तो मैंने सोचा कि उधर तो मैं गाइड पहली बार जा रहे थे, मतलब वो मेरा गाइड था पर उसको भी नहीं पता था रास्ता किधर से। हम तीनों पहली बार जा रहे थे। तो नॉर्मली उस रूट को क्लाइम करने में अराउंड 8 से 9 दिन लगते हैं। तो हमने उसको 20 आवर्स में क्लाइम किया था, मतलब जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। उसके बाद मैंने उस माउंटेन के टॉप पे 22 आवर का स्टे किया था। हालांकि स्टे करना इलीगल होता है, आप किसी माउंटेन पे रुक नहीं सकते। तो उन लोगों ने मुझे जेल में डाल दिया था तंजानिया की, मतलब वो सीधा अच्छा। इन्फॉर्म कराने चाहिए कि ऐसा ऐसा है। तो फॉरेस्ट रेंजर आए, बेस कैंप से मुझे उठा ले गए। तो वहाँ की मीडिया को पता चला कि कोई कोई इंसान है इंडिया का जिसने किलिमंजारो अफ्रीका का हाईएस्ट पॉइंट है, तो वो न्यूज बन गई थी, वहाँ किसी ने स्टे किया है टॉप पे। तो फिर उनने पूछा कैसे क्या, मैंने बोला कि मेरा चैलेंज है कि जो 7 कॉन्टिनेंट्स के हाईएस्ट पिक पे मैं स्टे करूँ। तो उन्होंने छोड़ा, वहाँ भी आखिरी दिन बचा था वीजा का। तो वहाँ से फिर इंडिया आया। फिर अभी मैं लास्ट ईयर यूरोप रशिया गया था। मैं रशिया मतलब यूरोप कॉन्टिनेंट का हाईएस्ट पीक है माउंट एल्ब्रोस। उसको भी क्लाइम करने में अराउंड 8-9 दिन लगते हैं, तो मैंने उसको 5 घंटे में क्लाइम किया था। फिर 4 घंटे वहाँ पे सोया था ऊपर, 3 घंटे में, मतलब 12 घंटे का मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि 12 घंटे में चढ़ा और उतरा। उसके बाद मैं अभी ले गया था, लेह में मैंने 5 दिन में 4 माउंटेन क्लाइम किए थे। तो जर्नी चल रही है। अभी मेरा टारगेट है कि मतलब इंडियन हिमालय को एक्सप्लोर करूं और 3 साल में 100 माउंटेन्स क्लाइम करूं। तो यही मिशन है, अभी चल रहा है, देखते हैं आगे कहाँ जाते हैं। दैट इज रियली वेरी इंस्पिरेशनल। मतलब आपने जो चीजें बताई, और मैं तो शॉक्ड हूँ, आपकी जो उंगली कट गई है। तो ये तो मतलब बहुत ही जैसे बिना इसका मतलब ऑक्सीजन। पूरी बॉडी में 2% यूज होता है, डॉक्टर ने बताया था। तो आधी कटी, मतलब 1% यूज 1% कट गई। मतलब 99 अभी यूज कर सकते हैं। उससे भी ज्यादा कुछ काम नहीं। जी। ब्रेक ब्रेक लगाते स्कूटी में तो याद आती है बस, और कुछ याद नहीं। पर मैं आपको बताना चाहती हूँ मधुसूदन जी, हमने अभी तक कितने सारे वेबिनार किए हैं, पर जो आपका वेबिनार, मतलब आप जब आप बोल रहे थे तब मुझे कंटिन्यूअस गूज बम्स आ रहे थे कि किस तरह से आपने सरवाइव किया है, और किस तरह से लाइफ में एक मिशन और एक ड्रीम लेकर जो चलता है व्यक्ति, वो किस तरह से फोकस्ड रहता है। ये आपके जो जर्नी सुनी उससे मुझे पता चला कि इतनी कम उम्र में, मेरे ख्याल से आप 23 साल के होंगे अभी, तो इतनी कम उम्र में आपने इतना बड़ा अचीवमेंट किया है। तो 3 दिन बाद मेरा बर्थडे है।
अच्छा तो हमें पता होता तो हम उसी दिन रखते आपका वेबिनार, सो वी कैन सेलिब्रेट, वी कुड हैव सेलिब्रेट योर बर्थडे। बिल्कुल बिल्कुल, पर जल्दी हो गया, कोई बात नहीं। तो मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहती हूँ कि क्या एनकरेज किया आपको, जो आपने ये स्टार्ट किया माउंटेनियरिंग जो है, वो कैसे, मतलब क्या सोच के या क्या ड्रीम करके स्टार्ट किया था? तो नॉर्मली मैं जो अपनी सोसाइटी है उसकी जो चॉइस होती है उस पर यकीन नहीं करता हूँ कि आप जैसे मैंने आईआईटी क्रैक किया था, मैं फायर अच्छा। टेक इंजीनियर हूँ, ओहो। बहुत अच्छा पढ़ने वाला बच्चा हूँ। तो मुझे कभी इंटरेस्ट नहीं था कि कुछ इस फील्ड में जाऊं, तो मैंने हमेशा कुछ डिफरेंट करने का सोचा था, क्योंकि मैं ये सोचता हूँ क्या कागज पढ़ेंगे और 20 साल कागज कमाएंगे और आखिरी के 20 साल में उन बच्चे कुछ कागज से जिंदगी गुजारेंगे, तो मैं यकीन करता हूँ कि कुछ कुछ अलग करें या फिर डिफरेंट लाइन करें, तो मैंने माउंटेनियरिंग डिसाइड किया। तो उसी से मतलब फिर पहली बार जब माउंट एवरेस्ट देखा तो प्यार हो गया मुझे पहाड़ों से, और फिर मेरा सपना बन गया कि एवरेस्ट क्लाइंब करना है, और कुछ अलग फील्ड थी, कुछ डिफिकल्ट था, कुछ मतलब रिस्क लेना पसंद था, तो कुछ अच्छा लगा मुझे, फिर ये फील्ड डिसाइड की मैंने। दैट इज अमेजिंग। मतलब जैसे आपने तो एक जगह पे ट्रेनिंग लिया और जो किया, जैसे हमें हमारे 140 पार्टिसिपेंट्स हमें सुन रहे हैं, तो अगर किसी को माउंटेनियरिंग स्टार्ट करना है अगर, तो क्या कोई ऐसा स्किल सेट एक्वायर करना पड़ेगा पहले और उसके बाद वो माउंटेनियरिंग करेंगे, या फिर किस तरह से स्टार्ट करना चाहिए अगर कोई प्लान कर रहा है माउंटेनियरिंग? सर मैं अगर नॉर्मली अगर किसी को सजेस्ट करूंगा कि आपको अगर प्रोफेशनल माउंटेनियर बनना है, तो पर अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो आप बनिए, क्योंकि काफ़ी स्ट्रगलिंग है, मतलब इंडिया में इतना रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, मतलब हमें स्कूलों में भी ये पढ़ा है कि हिमालय एक पहाड़ है, जबकि हिमालय एक रेंज है जिसमें कुछ 10,000 प्लस माउंटेन्स है। जी जी। कि कुछ कुछ लोगों को ये भी नहीं पता है कि एवरेस्ट क्या है, मतलब बोलते हैं कि पहाड़ चढ़ के आया है, हिमालय चढ़ के आया है। जी। तो इतना ज्यादा स्कोप नहीं है, गवर्नमेंट अप्रिशिएट नहीं करती है, मतलब इवन स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री हमको स्पोर्ट्स भी काउंट नहीं करता है, तो काफी डिप्रेसिव है। बाकी ये है कि अगर आप प्रोफेशनली माउंटेनियर बनना चाहते हैं तो इंडिया में कुछ 4 इंस्टीट्यूट है जहाँ से आप ट्रेनिंग ले सकते हैं, उसके बाद आप दूसरी कंट्रीज थे, जर्मनी या फिर नेपाल हमसे अच्छा है माउंटेनियरिंग में, वहाँ पे एज अ माउंटेन गाइड आप वर्क कर सकते हैं, या फिर इंटरनेशनल माउंटेन गाइड्स के कोर्स आप अलग अलग कंट्रीज में जा सकते हैं क्लाइंबिंग के लिए। ये है कि मेनली इसमें ट्रैवलिंग ज्यादा है, तो आप लाइफ जी सकते हैं, पर इतना पैसा नहीं है। तो इंडिया में कुछ इंस्टीट्यूट है माउंटेनियरिंग, डेफिनेटली आपको फिटनेस थोड़ा और मेंटली फिट होना चाहिए, तो वो थोड़ा स्किल चाहिए, जैसे नॉर्मल हर कोई इंसान माउंटेन्स में फिट नहीं होता है। तो जैसा आपने बताया कि जैसे एक आप बार भूल जाते हैं, एक पर्टिकुलर हाइट पे जाकर चीजें भूलने लगते हैं जैसे, हम्म। तो उसके लिए भी पूरा ऐसा ट्रेनिंग होता होगा कि किस तरह से आपको अपना आपका डिवाइड मतलब करना है। मेंटल एक स्ट्रॉन्ग करने के लिए पूरी ट्रेनिंग्स होती है, योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, जैसे मैं एवरेस्ट पे 36 डे कंटिन्यू नहीं सोया, बाप रे। उसके लिए आपको प्रिपेयर होना चाहिए, ऐसा होगा तो आप क्या करेंगे, मतलब आपका दोस्त आपके सामने, 3 दोस्त आपके सामने मर गए, तो आप क्या रिएक्ट करेंगे, जी तो जी। काफी चैलेंजिंग है, तो आप पर अपना ये अपने डेंजरस जिगर भी है। उतना ही है, डेंजरस बैलेंसिंग क्या, के मतलब साथ साथ। एक रस्सी कटी आप मर गए, एक एवलॉन्च आ गया आप मर गए, एक क्रेवास में गिर गए आप मर गए, वाइट आउट हो गया, आपने चश्मा निकाल दिया, स्नो ब्लाइंड हो गए, मतलब रात को भी चश्मा लगाना पड़ता है, अच्छा। क्योंकि आप सूरज के बहुत पास है, वहाँ पे डायरेक्ट अल्ट्रावायलेट रेस आती है, और आइस क्रिस्टल होता है, तो आपको रिफ्लेक्ट ज्यादा करती है, तो आप अंधे हो जाते हैं 5 मिनट में, फिर हाथ खून जम जाता है, तो काफी चैलेंजेस है। तो आपको कभी डर नहीं लगता है मधुसूदन जी? मैं मैं 13 बार मरता बचा हूँ, एक बार तो ऑलमोस्ट मर गया था, तो अब मुझ पे डर नहीं ऑलमोस्ट। लगता। मतलब ऑलमोस्ट। मेरे घोड़े वाले ने मुझे ढूंढ लिया था कि मोगली दा इधर है एवलांच में, तो निकाल लिया था। आपको मोगली क्यों बोलते हैं मधुसूदन जी? मुझे इंडियन आर्मी ने मोगली नाम दिया था, मतलब मैं अच्छा। मोगली जैसा क्लाइम करता हूँ। ओह दैट्स वंडरफुल।
So it is like a title आपको मिला हुआ है मोगली का. हाँ, अभी सब मोगली बोलते हैं। तो ये मतलब जैसे अभी तक तो अभी आपने सोच रखा है कि इतने टाइम में क्या फ्यूचर पर्सपेक्टिव्स हैं सर इसको कंटिन्यू करने में? तो अभी मेरा तो इंडिया में 100 माउंटेन एक्सप्लोर करने का प्लान है। उसके बाद मैं ट्रेवलिंग स्टार्ट करूंगा, मतलब मुझे $3 मिलियन कमाने हैं। तो $150 पर डे के हिसाब से मैं 50 साल तक किसी भी देश में जिंदा रह सकता हूँ। ये मेरा टारगेट है। नहीं तो इसमें मतलब जैसे आप कर रहे हैं तो जैसे किस तरह से अर्निंग सोर्स कैसे हो सकता है ये माउंटेनियरिंग? तो नॉर्मली मैं इंस्टाग्राम के थ्रू कमाता हूँ, ब्रांडिंग करता हूँ ब्रांड्स की, या फिर स्पॉन्सरशिप हो गई है। फिर मैं ऐसे वर्ल्ड एडवेंचर सोसाइटी का ब्रांड एम्बेसडर हूँ। तो काफी ब्रांड्स टच में, क्राउड फंडिंग हो जाती है कभी 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 स्कूल्स कॉलेज में सेमिनार्स के लिए कुछ चार्जेस हो जाते हैं, कभी कभी गवर्नमेंट भी हेल्प कर देती है। तो वही है, किस्मत का खेल है। सर्टन नहीं है लेकिन ऐसा अनसर्टन ज्यादा डिजायर नहीं है मेरे जिंदगी से। खुश है, चल रही है। इतनी अच्छा, इतनी कम उम्र में आपकी डिजायर्स नहीं है, मैं बड़ी आश्चर्य में हूँ कि इतनी कम उम्र में डिजायर्स कैसे नहीं है। मतलब कुछ इतने वो नहीं है कि लग्जरी लाइफ जीनी है, बड़ा घर चाहिए, बड़ी कार चाहिए। जी। मतलब मुझे तो एक वैन भी मिल जाएगी तो एक स्कूल बस में भी मैं दुनिया घूम सकता हूँ। मतलब घूमना एक ओवरऑल पैशन है आपका? मतलब मेरा ये मानना है कि लाइफ एक 60 साल की जर्नी है, तो आप घूमिए यार। मतलब एक ही जगह रह रहे के आखिरी के 10 साल में कोई नहीं घूम सकता, सब बुढ़े हो जाते हैं। जी ये जो अभी का टाइम है, यही घूमने का होता है। जी बिल्कुल सही। तो आप अपने तरफ से जो यूथ आपको सुन रहा है, जो लोग आपको सुन रहे हैं, तो आप अपनी तरफ से क्या मैसेज देना चाहते हैं उनको? जो दिमाग में आया, दिल का है, वो करो। दुनिया की मत सुनो, क्योंकि दुनिया बहुत, मतलब क्या बोल सकता हाँ हूँ, ठीक है, मत खराब बोलिए। मतलब आपको अफसोस नहीं होना चाहिए। अगर कल को अगर मेरा साथ कुछ होता है माउंटेन्स पे, तो मुझे कभी अफसोस नहीं होगा कि मैंने कुछ करा नहीं देश के लिए, समाज के लिए, या फिर यूथ के लिए। तो आप एटलीस्ट ऐसा काम एक करिए कि आपको खुद को प्राउड हो आपको। जी। तो मेरा एक और सवाल था, आखिरी सवाल है, बहुत ज्यादा सवाल नहीं पूछूंगी मैं आपसे, कि जैसे आप यहाँ से गए तब मॉर्गेज लेकर, मतलब आप लोन लेकर गए हैं, आपने लोन लिया और फिर आपने ट्रेवल किया, तो आपने फिर हाउ यू रिकवर दैट लोन? मतलब अभी हुआ नहीं है, अभी मतलब चल ही रहा है। अभी देखते हैं, कुछ ना कुछ होगा तो कुछ होगा। अच्छा, दैट इज मतलब अभी रियली। मैंने अराउंड अराउंड 70 lakhs मैंने पे करा है लास्ट 3 years। लाइक अभी कांग्रेस गवर्नमेंट ने कुछ दिया था, फिर कुछ इधर उधर से कमा के, मतलब अभी कुछ अराउंड 10-12 लाख और बचा है। थोड़े धीरे कमा रहा हूँ, दे देंगे। जी जी जी। तो ये एक बहुत ही वंडरफुल जर्नी रही है सर। मतलब आपकी जर्नी सुनकर मेरे ख्याल से जितने भी लोग जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है यहाँ पे, वो डेफिनेटली दे हैव कहीं ना कहीं आपने इंस्पिरेशन दिया है उनको, और वो कहीं ना कहीं हो सकता है कि एक आध दो माउंटेनियर जो है वो यहाँ से भी निकल ही आए। तो बिल्कुल इट बिल्कुल, वाज निकलिए रियली आप। अमेजिंग। पहाड़ बहुत अच्छी जगह है। जी जी। और अभी जैसे कोविड एरा चल रहा है, तो इस दरमियान आप किस तरह से क्या करके, मतलब कैसे ट्रैवल करते हैं, या किस तरह से क्या क्या प्रिकॉशंस रखते हैं? तो नॉर्मली तो अभी 6 महीने से घर पे ही हैं। तो नॉर्मली मैं राव में रहता हूँ, तो हमारी समाज से हम कुछ 3-4 हजार पैकेट फूड्स के बनाते थे गरीबों के लिए। अच्छा। तो वो अभी चल रहा था। उसके बाद मैं राव स्मार्ट सिटी का ब्रांड एम्बेसडर हूँ, तो कुछ प्रमोशन कर लेते हैं, अच्छा। मतलब जो भी अवेयरनेस के लिए। तो बस अभी यही चल रहा है। अभी कुछ प्लान चल रहे हैं, रिसर्च चल रहे हैं मेरे 15 अगस्त को लेके, कुछ क्लाइंबिंग के। मतलब अच्छा। जो हमारे शहीद जवान थे चाइना बॉर्डर पे, तो मैं लद्दाख चाइना बॉर्डर पे जाके माउंटेन क्लाइंब करूंगा, उनको ट्रिब्यूट दूंगा। ओह, दैट उसके लिए इज अभी चल रहे हैं, अच्छा। बात चल रही है स्पॉन्सरशिप की। कोई दे देगा तो चले जाऊंगा, नहीं तो ठीक है। जी जी। स्पॉन्सरशिप्स पे काफी कैसे आप अप्रोच करते हैं स्पॉन्सर्स को, कैसे स्पॉन्सरशिप्स लेकर आते हैं सर? लाइक मेरी एक पीआर टीम है मुंबई में, तो वो लोग पूरा टारगेट करते हैं कुछ वैसा। अभी तो सारी ब्रांच के पास पैसे नहीं है, अधिकतर तो बंद हो गई है।
तो इसमें मेरे सोशल मीडिया मेरा फॉलोअर्स अच्छे हैं, कुछ 1.5 लाख के आसपास है, तो अच्छा अच्छा, दैट्स प्रमोशन हो अमेजिंग। जाता है। फिर मैं रिकॉर्ड्स क्रिएट कर लेता हूँ प्लांट्स के लिए, कि मैं हर माउंटेन में कुछ रिकॉर्ड बनाता हूँ। अच्छा, तो ठीक है, उनका भी नाम हो जाता है, मेरा काम हो जाता है। तो इसमें तो बहुत मतलब जैसे आप ये रिकॉर्ड्स बनाते हैं तो आपको बहुत रिसर्च करना पड़ता होगा। हाँ, काफी रिसर्च करना पड़ता है। मतलब मैंने अधिकतर वर्जिन माउंटेन्स क्लाइम किए नहीं है, जिनको कोई जानता नहीं है, तो मैं वैसे क्लाइम करता हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि यार इंडिया में हमारे पास हिमालय और हिमालय की कदर नहीं है, तो ये सबसे मतलब खराब चीज है। ये शर्म आनी चाहिए हमें जी। कि हमारे पास हिमालय और हमको कदर नहीं है, क्योंकि हमारी सरकार स्पोर्ट्स में कभी ध्यान देती नहीं है। हाँ। क्रिकेट का माफिया है पूरे देश में, तो दूसरे एथलीट्स आगे बढ़ नहीं पाते हैं। जी, क्रिकेट तो खैर वो मैं तो अभी है। हम्म, मेरा यही अभी कि माउंटेनिंग को थोड़ा प्रमोट करें। तो उसके लिए आप कोई कोशिश कर रहे हैं माउंटेनिंग को बढ़ावा देने के लिए? कोशिश जारी है, कभी सफलता मिलेगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक बहुत ही मैं कहूँगी अद्भुत अनुभव था सर आपके साथ बात करना। और ये इस तरह के लोग जो हैं हमें बहुत कम देखने को मिलते हैं, जो इतनी सिंप्लिसिटी से इतनी बड़ी अचीवमेंट्स बता रहे हैं। तो आपको हम्म, बिल्कुल मैं नमन करती हूँ कि आपने इतनी सिंप्लिसिटी से सारी चीजें बताई हैं। और हमारे हम साथ हमारे अभी जैसे पूरी दुनिया में सिर्फ 3500 ही है। अच्छा, ऐसा आपने वो भी रिसर्च करके रखा है। हाँ, अभी तक 3500 लोगों ने क्लाइम किया है एवरेस्ट, तो अच्छा, ज्यादा नहीं है। 7.2 बिलियन पॉपुलेशन तो है, यू आर द इतना रेयर लोग हैं। रेयर ब्रीड you can say. यस यस। So it is amazing, you know, it is amazing to talk to you and it was wonderful experience to talk to you sir. और बहुत ही मजा आया आपकी पूरी जर्नी सुनकर। मैं तो एकदम आश्चर्यचकित हो गई हूँ। बहुत ही अद्भुत अनुभव रहे हैं आपके। और मेरे पास शब्द कम पड़ रहे हैं अब। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आपने जो भी जिस तरीके से बताया, इतनी सिंप्लिसिटी से बताया, तो मेरे पास शब्दों की कमी हो गई जिस तरह से आपने अपने जीवन के अनुभव बताए हैं। अंत में मैं हमारे जो ग्रुप डायरेक्टर हैं डॉक्टर पुनीत कुमार द्विवेदी जी से अनुरोध करती हूँ कि वो सर को थैंक यू स्पीच दे दें। थैंक यू मैम। मधुसूदन जी का बहुत बहुत आभार कि आपने जो अपनी जर्नी बताई है, और जो भी ऑडियंस इस समय जुड़े हुए हैं जो मधुसूदन जी को सुन रहे हैं, तो उन सबसे व्यक्तिगत रूप से निवेदन करूंगा, सारे ऑडियंस उनके सोशल मीडिया हैंडल पे जाएं और यूट्यूब पे देखें। यूट्यूब पे मैंने भी रिसर्च किया है, उनकी वीडियो देखे हैं। इन्होंने आप लोग भी जुड़े हैं सोशल मीडिया हैंडल्स पे, इनके फेसबुक पे जुड़े हैं, ट्विटर पे जुड़े हैं। इनको सपोर्ट करें और इनकी जैसे अन्य युवाओं का भी सपोर्ट करें। और हम सब मिलकर के, जैसे आपने बताया कि 3500 लोग ही हैं विश्व में, यह देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम इस उपलब्धि को ठीक से समझें और अपने इस टैलेंट को, अपने इस एक अच्छे टैलेंट को, एक स्पोर्ट्स पर्सन को हम आगे प्रमोट करें। मेरी शुभकामनाएं मधुसूदन जी के साथ हैं और मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने समय निकाला और वेबिनार सीरीज में आपने अपना समय दिया। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया सर। Thank you so much, sir, once again. And on behalf of entire Modern family, I, Arpita Patel, thank you so much, sir. I extend my heartfelt thanks to you. आप यहाँ पर आए और आपने अपनी जर्नी इतने सिंपल फॉर्मेट में बताई और लोगों को मोटिवेट भी किया कि किस तरीके से जो है वो लाइफ को जीना चाहिए। तो एक ये बहुत अच्छा संदेश दिया है आपने। मैं चूंकि बहुत कम ट्रैवल करती हूँ, तो मैं भी जो है वो ट्रैवल करना स्टार्ट कर दूंगी, क्योंकि इस तरह के एक्सपीरियंस जो है वो जब हम खुद करेंगे तभी वो इस तरह के एक्सपीरियंस हमें मिल पाएंगे। So once again, on behalf of entire Modern family, on behalf of our chairman, Shri Anil Kharia ji, vice chairman Shri Shantanu Kharia ji, and our group director Dr. Puneet Kumar Dwivedi, I, Arpita Patel, extend my heartfelt thanks to join us on this webinar series #Modern Talk. मैं सारे पार्टिसिपेंट्स को भी थैंक यू बोलना चाहूंगी जो हमारे साथ जुड़े थे, जो 150 पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ जुड़े थे। All the participants, I have copied the
feedback link in the chat box. So please fill the chat feedback link, and also you will receive the certificate after the webinar itself. Tomorrow also we have a session at 2 p.m. So please join us. You will get the mail for the same for tomorrow's webinar. So once again, thank you so much and stay tuned. Thank you so much. Thank you, ma'am.